Hello? Hello? Am I audible? Hello? 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 Am I audible? Hello? Just write the comment if I'm audible to everyone. Am I audible to you all? Okay, fine. So let's begin the session and Namaste and Jai Bhim to all. Let me introduce myself first of all, and after that I will begin the session. The title of the session is The Utility of English in the Professional Realm. So let's begin the topic and the session with the formal introduction. So let me introduce myself. I'm Dr. Paridhi Kishore, and I have done my PhD in English literature. So far I have 6 years of teaching experience, and from last few years I have engaged with students of literature as well as technical background. लिटरेचर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एंड टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स दोनों को मैं पढ़ाती हूँ, एंड आई एम क्वाइट फेमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स. आई मीन whatever is going in the market, whatever is required to fetch a good job and to settle in the professional world. So as you know, English is quite mandatory, and you can't avoid this language as far as your professional career is concerned. English has become the sanctum sanctorum of the professional world. See, in my teaching career, I have seen students जो कि इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश को पढ़ना नहीं चाहते या उसको एक बर्डन की तरह लेते हैं. So let me clarify this. I am also a published author, and I have worked on multi-dimensional aspects like I have dealt with technical aspects of language. I have dealt with literature. As far as literature is concerned, the specific areas are Dalit literature, American literature, slave narratives. So I have worked in these areas. I worked over the technical aspects of the languages. So I know the importance of English because as far as the fluency is concerned, as far as the grammar is concerned, as far as the lexical qualities of English is concerned, English holds, these days English holds the lever of your life. So it becomes utmost, important for you to learn English wholeheartedly. I've been asked to make the session bilingual, so मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों उसमें बात करूँगी. आपको मैं इंग्लिश में क्या स्कोप है, उसके क्या करियर हैं, वो भी बताऊँगी और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगी इन academics. See, I am one among you all. मैं भी आप में से ही एक हूँ. I will tell you my experiences about a Dalit female scholar who survived among the Savan academic agraharas and defined caste barriers, defined gender barriers, and eventually, able to create a certain space, certain agency for herself. Right? So nothing is tough, nothing is difficult if you are adamant enough, if you are sticking to your goals, you can achieve anything, right? And okay, so let's start with it. As my area of interest is language and literature, so I shall be discussing with you about the scope of English language in global realm, and I shall also be discussing about a bit of my own personal experiences as a Dalit female among these Savana academicians. As you know this, let me tell you one thing, ये जो academics की field है,
it is being dominated by these Savarnas, specifically the Brahmins. आप किसी भी यूनिवर्सिटी का केस ले लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में SC, ST एंड OBC से रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. IITs एंड IIMs में तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं. So the one thing that emerges inside the mind, do we lack in merit? No, we don't lack in merit anywhere. We become the victim of this political nexus, this political, this casteist mentality. We become the victim of that mentality. We don't lack in merit anywhere. So let me begin it all with the emphasis, with the introduction about the scope of English for Dalits. Specifically, I'll be focusing on the scope of English for Dalits in context to NEP, National Education Policy 2020, that has been introduced by the government in July 29, and the available opportunities for Dalits as far as this area, this particular and specific area, English is concerned, right? So, as you know, I have no clue that how many of you have read the basic draft of National Education Policy, but once you will go through it, you will get to know that I will be only discussing about the language, the English language. So then you will get to know they have neglected English throughout, right? So since from class 1 to 5, students are not, they are not allowed to read English. they have neglected English throughout. जैसे कि three language, they have introduced the combination of three language, yes, and उस combination में Sanskrit is important. Sanskrit is not important. Sanskrit is compulsory. Sanskrit के साथ you can take any other subject of any other language, Indian language, two other Indian languages, like Sanskrit is important, and you can also take two other Indian languages. English को they have neglected throughout. What is the purpose behind this? इसके पीछे इनका एजेंडा क्या है? संस्कृत को ये बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं. इंग्लिश को नेग्लेक्ट करना 1 to 5 तक के बच्चों से सीधे से मतलब ये निकलता है कि आप 1 to 5th तक में बच्चा कितने साल का होता है, तो उस 7 या 8 साल तक आप बच्चे को इंग्लिश से डिप्राइव कर रहे हो. सो इंग्लिश से डिप्राइव करने का मतलब जब 6th में वो इंग्लिश पढ़ेगा या 7th में वो इंग्लिश पढ़ेगा, सो एक एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो उस चीज को एक बर्डन के तौर पे लेगा, एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पे लेगा, एंड वो जो बर्डन होगा वो शायद से उस चीज को पढ़ ना पाए, शायद से उस चीज को पढ़ने को उसका मन ना करे, क्योंकि एक वो एड ऑन सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा. एंड एज यू नो वेरी वेल, गवर्नमेंट स्कूल्स में किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो हमारे बच्चे होते हैं. ये जो हिंदी दिवस मनाने के पीछे ये जो इनका एजेंडा है वो भी समझ में आ रहा है. हिंदी दिवस ये क्यों मनाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में ही मनाते हैं हिंदी दिवस. प्राइवेट स्कूल्स में, ये जो प्राइवेट अपने जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इनकी फीस भी ज़्यादा है, एंड वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. सो हिंदी दिवस ये मना रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये मदर टंग को ये बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई कर रहे हैं. ये इसके पीछे क्या एजेंडा है? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में आई वोंट ड्वेल्व इनटू द टेक्निकल टर्म्स, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ. नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन हम हैं, तो नॉर्थ इंडिया में मैंने जहाँ तक ये ऑब्जर्व किया, संस्कृत जो एक ऐसी लैंग्वेज है, ये संस्कृत जो है हेजेमनी यू नो, to establish the hegemony of certain class. Sanskrit cultivates the hegemony, and it enhances the class and the caste interest. Who holds the lever of the Sanskrit? These Brahmin Agraharas, they hold the lever.
ये कहते हैं संस्कृत पढ़ो, संस्कृत में ये करो, पर लेवर किसके हाथ में है? These Brahmins, they hold the lever. आपने पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी, एक मुस्लिम स्कॉलर थे BHU के, he got appointment, but then again these people they protested, and he was then apart from having the qualified candidate, and these people protested. Why? क्यों वो नहीं जा सकते? संस्कृत वो मुस्लिम नहीं पढ़ाएंगे या दलित नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि संस्कृत की मोनोपोली these people hold, right? So आप कितना भी कर लो संस्कृत में, संस्कृत आपको लिबर्टी नहीं दे सकती है. आपको लिबर्टी कौन देगा? आपको लिबर्टी इंग्लिश लैंग्वेज ही देगी. एंड दिस हैज बीन एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन बाय द बहुजन आइकन्स, our बहुजन आइकन्स who played the pivotal role in our own liberation, right? For instance, say Savitri Bai Phule, Mahatma Phule, the couple started the first school for Dalits, for females and for minorities. So मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कैसे सावित्री बाई फुले ने way back then, I mean I am talking about Savitri Bai Phule way back then. Apart from having, you know, minimal education, she emphasized on the importance of English, and she has written a poem on the importance of English. Like poem जो उन्होंने लिखी वो मराठी में लिखी, बट उनके पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अवेलेबल है. आप उस पोएम को पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो कि वे बैक देन इफ शी कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हम इस वक्त क्यों नहीं इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर सकते हैं. सो आई विल टेक 2 minutes, आई विल नरेट दैट पोएम. मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, उस पोएम की लाइन बाय लाइन आई विल नरेट. छोटी सी पोएम है, सावित्री बाई फुले के थॉट्स हैं, मराठी में उन्होंने ये पोएम लिखी थी. The poem has the translation available in English, so I'll be reading out, I'll be narrating the translation which is available in English. Okay, so the poem goes like this. Make self-reliance your companion. Make self-reliance your companion. आत्मनिर्भर बनो, उसको अपना companion बनाओ. Exert yourself to gather the wealth of knowledge. अपने सारे एफर्ट्स लगा दो. वेल्थ, कैसी वेल्थ? नॉलेज को एक्यूमुलेट करने की वेल्थ. इस चीज में अपने सारा प्रेशर लगा दो. एक्सर्ट योरसेल्फ टू गैदर द वेल्थ ऑफ नॉलेज. विदाउट नॉलेज एनिमल रिमेन डम. नॉलेज के बिना तो हर कोई डम भी होगा. डोंट रेस्ट, स्ट्राइव टू एजुकेट योरसेल्फ. रेस्ट मत करो till you attain your goal, till you reach your aim. Don't rest. Strive hard to educate yourself. The opportunity is here for the Shudras and Ati Shudras. Here lies the opportunities for the Shudras and Ati Shudras. Only through English, right? To learn English, to dispel all woes. Through English, you can get rid of all your woes, right? And throw away the authority of the Brahmin and his teaching. Through English only you can throw away, you can eradicate. I mean, आप जड़ से उखाड़ सकते हैं Brahmin authority को. Only through English this is possible. Break the shackles of caste. Break the shackles of caste by learning English. आप अगर caste के shackles को तोड़ सकते हैं तो only by learning English. So such is the importance of English. Savitri Bai Phule has realized way back then. So हम क्यों नहीं इस वक्त realize कर सकते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर हम बात करें, he too has emphasized on the importance of English. उन्होंने अपने जितने important works हैं, मराठी as well as in English, he has written. He was well articulated. He was, you know, he was well spoken. He was critically a well refined man who has articulated his thoughts in English language, and only through English he was able to transgress the citadels of these savan and privileged class. केवल इंग्लिश के थ्रू ही वो पहुंचे और उन्होंने आपको मैं कभी मौका मिलेगा तो आई विल शो यू the newspaper clipping of that particular event when Baba Saheb Ambedkar
he was able to create certain space, certain agency among these ministers and parliamentarians. So the Times of India की I think ये heading थी, the leader of untouchables transgressed the citadel of privileged. Right, the leader of untouchables transgressed the citadels of privilege. अगर बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते हैं, उतने अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से वो थे, only through English he was able to transgress the citadels of privilege. अगर he can do it, so why can't we do it? आपको मैं एक बात बता दूं, संस्कृत we can't neglect. That's true, we can't neglect. See, बाबा साहब अम्बेडकर भी जर्मनी गए थे संस्कृत सीखने. अगर आपको ये पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, he went to Germany to learn Sanskrit. Why to learn Sanskrit? He went to Germany. Why? Because he wanted to decode, he wanted to decrypt the shlokas and all the casteist rhetorics which were written in these books of Brahmins, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया था, इस तरह की चीजें करी थी उनके साथ. Only to decrypt those shlokas, only to decrypt those rhetorics, he went to Germany to learn Sanskrit. He was a well-read man. उनको संस्कृत भी आती थी, that's true. लेकिन उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दी. Why? Because only through English, he knew it, कि only through English जो आप वेस्ट में अपॉर्चुनिटीज को सीख कर सकते हैं. इंग्लिश ओपन्स मेनी एवेन्यूज फॉर यू टुवर्ड्स वेस्ट. आप वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ अगर जाना चाहेंगे तो इंग्लिश बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट? सो ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कैसे how English remains the window of modern advanced knowledge. Let me tell you something about it. As you know, एक आर्ग्यूमेंट ये लोग देते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को मत सीखो, इंग्लिश को नेग्लेक्ट करो. क्यों? Why? Because English is the legacy to the British Empire. ये आर्ग्यूमेंट ये लोग देते हैं कि इंग्लिश तो हम ब्रिटिश एम्पायर की लेगेसी को हम धो रहे हैं, तो let's not uplift it, and let's talk about improving, and let's talk about enhancing and facelifting of the native Indian languages. So my question is, if they are talking about this, then why only Sanskrit? Why not Tamil? Tamil is the indigenous language, the language of the aboriginals. ये बेसिक जो मूल निवासी हैं उनके, जो सबसे पहले the first language came to known to Indians was Tamil. Yes, तमिल का लिटरेचर बहुत वास्ट है. आप अगर पढ़ेंगे उसको तो तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे पहले आई, एंड देन ये these Aryans, they invaded India and they imposed Sanskrit, right? So why Sanskrit? क्यों आखिर संस्कृत को ये बढ़ावा दे रहे हैं, एंड संस्कृत को ये बढ़ावा दे रहे हैं, एंड इंग्लिश को ये बिल्कुल नेग्लेक्ट करें? इसके पीछे इनका जो एजेंडा है, जो मोटिव है, क्लियर है. 85% जो पॉपुलेशन है SC ST OBC को, उसको आप हिंदी और संस्कृत के चक्कर फंसाए रखें. इनके बच्चे तो कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं और बाहर पढ़ने चले जाते हैं. हम लोगों को ये संस्कृत और हिंदी के चक्कर में फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि जस्ट टू क्रिएट द बाइनरी यू नो, बाइनरी किसी भी चीज की हो सकती है. बाइनरी कुड बी ऑफ एनीथिंग. लैंग्वेज बाइनरी में आपको फंसा देंगे, हिंदी वर्सेस संस्कृत. रिलीजन बाइनरी में आपको फंसा देंगे, आपको हिंदू वर्सेस मुस्लिम. सो बाइनरी के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है. हमें अपने पर्सनल एनहांसमेंट को, पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, और इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करती रहना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट something about the careers. Okay, the career, the available opportunities and the options available in this area, and job prospects के उससे आपको English कैसे help कर सकती है, and also how to improve your English. I will share some stratagems, right?
some fingertips as in how you can improve your English and where to seek opportunity, where to seek job opportunity, right? Okay, so let me begin with job prospects and job opportunities. Where to apply, when to apply, and in which area to apply, right? I will tell you. See, as far as English is concerned, you can apply in teaching, right? So first of all, teaching requires either BEd degree, or if you're aspiring for, higher education, you must possess NET, N-E-T, NET, National Eligibility Test, or GRF, right? So through NET and GRF, you can get into the university education, and through BEd, you can get into the school education, right? एक तो ये हो गया. I will discuss about each career bit by bit. All right. So first of all, I am talking about teaching. So university education की अगर मैं बात करूँ, so I have been engaged with the students of literature and communication students at university level, right? So primarily I hold NET and GRF, right? But बहुत ही रियलिस्टिक टर्म्स में मैं आपसे बात करूंगी, बिल्कुल भी मैं कोई आपको बातचीत बढ़ा चढ़ा के नहीं करूंगी, एंड आपको बिल्कुल जो है वो चीज मैं आपको सिनेरियो, आई मीन आई विल कीप यू फेमिलियर विद द सिनेरियो, व्हाट इज गोइंग इनसाइड, I mean these areas, right? So I will keep you, I will try to make you familiar with that. University education की हम बात करें, so university में assistant professor लगना, assistant professor, which is the permanent position any university offers. So assistant professor पे लगना 6000 GP की ये पोस्ट होती है, उस पे लगना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, राइट? सो 6000 GP की अगर आप यूपीएससी की बात करें, आईएएस की बात करें, सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन और आईएएस जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसके थ्रू आप बनते हैं, ये एक ऐसे करियर है जो कि इक्वल, हम उस पे इसको हम दोनों इक्वल पेडिस्टल पे हम दोनों को रख सकते हैं. आईएएस के बाद बहुत टेंशन होती है, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज डिफरेंट करियर. एजुकेशन फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर जो 6000 GP से शुरू होता है, आप बन सकते हैं अगर आपके पास नेट एंड जीआरएफ है, प्रोवाइडेड यू हैव टू अप्लाई एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज. सो व्हाट इज द ट्रेंड from last few years that I've been observing, ये एडहॉकिज्म का एक ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है. एडहॉकिज्म ये क्या करते हैं, परमानेंट पोजीशन पे तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, एंड एडहॉक पे ये रख लेते हैं लोगों को. जैसे कि आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो दिल्ली के एफिलिएटेड कॉलेजेस या इस पे आप पढ़ाने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो वहां पे यू विल गेट द इक्विवेलेंट सैलरी as in like 6000 GP पे assistant professors on ad hoc को भी वो उतनी ही देते हैं. But in UP if you talk about, UP and other states में if you talk about, they tend to exploit the ad hoc teachers a lot, right? Due to this culture, ad hocism, I mean एक आपसे काम भी बहुत लेते हैं, so एक प्रोडक्टिविटी आपके कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं. ये ad hocism का जो कल्चर है, it is hampering your productivity. ओके, अब इतना ज्यादा कंपटीशन इस फील्ड में भी हो रहा है क्योंकि लोग जो है वो पीएचडी कर रहे हैं, लोग जो है वो नेट कर रहे हैं, लोग जो है जीआरएफ कर रहे हैं. सो नेट एंड जीआरएफ इज नॉट द एंड. इसको एंड मत समझिए, इसके साथ साथ आपको अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी बढ़ाना होगा. नाउ व्हाट इज दिस एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्या है? यूजीसी जो बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक बॉडी है जो गवर्न करती है सारी यूनिवर्सिटीज को, वो किस बेसिस पे आपको ये अलाउ करेगी कि आप एलिजिबल हैं, यहाँ अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है. अगर आपके पास नेट है आप एलिजिबल हैं, लेकिन हो सकता है किसी के पास पीएचडी हो तो वो नेट प्लस पीएचडी वाला आपसे वो ज्यादा वेटेज ले लेगा. हो सकता है किसी के पास नेट भी हो, पीएचडी भी हो, बट उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ज्यादा हो. नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंतर्गत आपको
अपना API स्कोर बढ़ाना होता है। अब वो API स्कोर आप कैसे बढ़ाएंगे? आपको पेपर्स पब्लिश करवाने होते हैं। किसी भी जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जिसमें भी आपने अपनी रिसर्च की है उसके एम्बिट में रहते हुए आपको अपने पेपर्स पब्लिश करवाने। आप वेयर टू पब्लिश योर पेपर्स, कहाँ पब्लिश करेंगे? यूजीसी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे then you will get to find the list of journals as approved by UGC. I will suggest you, instead of going the journals which aren't approved by UGC, you must adhere to those journals who are approved by UGC, because जो peer reviewed journals होते हैं UGC में, UGC के अगर उसमें आपका पेपर पब्लिश है तो आपको एडवांटेज उसका मिलता है, राइट? पेपर के अपने मार्क्स होते हैं, आप सेमिनार्स में जाते हैं, वहां पे आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, उसके अपने एक अलग मार्क्स होते हैं। सो इस तरह से आप अपना एकेडमिक वर्कशॉप, सेमिनार्स करते हैं, इस तरह से आप अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को बढ़ाते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट? सो यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग में यू नीड टू डू दिस। Okay, now let's talk about journalism, right? English journalism, print media के में आप अपना करियर सोच सकते हैं, right? Okay, so if we are talking about journalism, again let me present a realistic picture in front of you. In January, I attended Jaipur Literature Festival, right? So there I get to meet a Dalit journalist who is these days she is working with New York Times and she is a correspondent. She is a Dalit woman. She came there. वहाँ पे मेरी उनसे काफी अच्छी बात हुई. Then there she told me कि जो आपका representation है, see आप English daily newspapers की अगर बात करें, आप you can point on your fingers. Times of India, The Hindu, हैदराबाद जाएंगे तो Deccan Herald, आप चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से द हिंदू निकलता है, राइट? दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस निकलता है, राइट? सो अगर इनमें आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, सो शी टोल्ड मी कि जो रिप्रेजेंटेशन है दलित जर्नलिस्ट्स का इन इंग्लिश प्रिंट मीडिया, इट्स नेग्लिजिबल, राइट? 3% जो है TAMBRAMS है. TAMBRAMS is a short acronym for Tamil Brahmins. They hold the monopoly. अगर आपको मेरी बात को डबल वेरीफाई करना चाहें, आप एडिटर इन चीफ, आप जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं आप उनके देख सकते हैं. सो आप अगर उनको देखेंगे then you will get to find कि जो TAMBRAMS है, तमिल ब्राह्मण्स, they hold the monopoly of English journalism, right? So आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए. लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है. You need to have command over the language, over the fluency, over everything which requires the framing of proper language, right? इसमें आप अपना करियर सोच सकते हैं. लेकिन एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर जो आपके, अगर आप जर्नलिज्म कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं तो जितने अच्छे इंस्टीट्यूट है वो प्राइवेट है. गवर्नमेंट का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यू विल गेट टू फाइंड इन दिल्ली, एक टाइम पे अच्छा था, अब उसके इतना ज्यादा रेलेवेंस उसका नहीं रहा. इंस्टेड ऑफ इट आई विल सजेस्ट यू टू गेट इनटू जामिया इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग योर करियर इन जर्नलिज्म, स्पेशली इन इंग्लिश जर्नलिज्म. एक मैं मिथ यहाँ पे ब्रेक करना चाहूंगी रिगार्डिंग द लर्निंग ऑफ इंग्लिश एंड रिगार्डिंग द फ्लुएंसी. सी हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के चक्कर में ऑफन वी टेंड टू कंट्राइव. एंड व्हाट इज दिस कंट्राइवेशन? हम उनके एक्सेंट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ब्रिटिशर्स के एक्सेंट को. सो दैट इज नॉट फीजिबल. वी हैव आवर ओन इंडियन वर्जन ऑफ इंग्लिश, सो लेट्स स्टिक टू दैट एंड इट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो लेट्स नॉट कंट्राइव करने में आपकी अपनी वो जो यूनिकनेस है ऑफ दिस इंडियन वर्जन ऑफ इंग्लिश, समवेयर it gets vanished, right? Okay, so you can make your career in teaching, you can make your career in journalism. आजकल जो corporate sector है, they do need English instructor. Okay, so corporate sector में जैसे काफी सारे आपके जो companies हैं, like TCS, like Wipro, like other prominent companies,
दे टू नीड इंग्लिश इंस्ट्रक्टर कह दो या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कह दो. So to become soft skill trainer, you should have a full-fledged command over the language, right? Soft skill trainer में command language पे होने के साथ साथ you must have the EQ and the IQ, right? Your intelligence quotient and the emotional quotient should be strong, right? So इसमें you can pursue your career. आप अपना जो translator की job आप pursue कर सकते हैं. आपके पास एक और अवेलेबल ऑप्शन है, आप एम्बेसीज में यू कैन अप्लाई. एम्बेसीज एंड यूनिसेफ की जॉब में भी यू कैन अप्लाई. एवरी ईयर यूनिसेफ जो यूनिसेफ है वो अपने नोटिफिकेशन एक निकालती है, एंड यूनिसेफ में अगर जॉब आपकी लगती है तो इट्स अ हाईली पेड जॉब. दे नीड वॉलंटियर्स, दे नीड इंस्ट्रक्टर्स, दे नीड कोऑर्डिनेटर्स टू वर्क, राइट? सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन अप्लाई इन यूनिसेफ एज वेल. ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं. ट्रांसलेटर आप एसएससी या गवर्नमेंट के जॉब्स में भी इसके थ्रू आप जा सकते हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर में आई टोल्ड यू अगर आपको जाना है तो इंग्लिश के थ्रू आप जा सकते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, दीज आर द पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स आई टोल्ड यू, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. ये दिस इज द बोन ऑफ द कंटेंशन. हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कैसे इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश. सी हम सब अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, राइट? वी ऑल आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड, वी ऑल आर फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड. सो नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल भी इस चीज में बुरा नहीं मानना है कि आपकी एजुकेशन किसी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है या म्युनिसिपैलिटी स्कूल से हुई है या किसी भी स्कूल से हुई है. इस चीज में आपको नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इट. यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू कैन ऑलवेज एक्सेल इन द इंग्लिश at later stages as well, right? So what you are supposed to do, आपको अपनी vocabulary को strong करना है. आप ये ठान लीजिए आपको हर दिन अपनी vocabulary को strong करने के लिए 5 word meaning याद करने ही करने हैं. याद करने के अलावा आपको उनका usage देखना है. कैसे, how to apply these words in a sentence. कैसे आप इन words को सेंटेंस में अप्लाई करें, यूसेज उसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा. दूसरी चीज, वर्ड्स आप कहां से लोकेट करेंगे? डिक्शनरी मत पढ़िएगा, डिक्शनरी पढ़ने में आप बोर हो जाएंगे. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर भी आपको अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना है. आई विल सजेस्ट यू, द हिंदू की लैंग्वेज इज बिट टफ. ओके, इफ यू आर इन द बिगिनिंग फेज, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट, प्लीज रीड इंडियन एक्सप्रेस, राइट? इंडियन एक्सप्रेस इज सच अ गुड न्यूज़पेपर. उसका एडिटोरियल पार्ट आपको पढ़ना है. एडिटोरियल पार्ट पढ़ना है, आपको वर्ड्स निकालने हैं, वर्ड मीनिंग पढ़िए उसको उन जो मीनिंग्स आपको दिखे उसको अप्लाई करिए. कैसे, हाउ टू यूज दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू स्पीक मोर. स्पीच कैन सीमेंट दिस लूप होल. कम्युनिकेशन करिए, आप ट्राई टू कम्युनिकेट. आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, फैमिली, अपना जो आपके फ्रेंड्स हैं, योर क्लासमेट्स, योर रिलेटिव्स, आई मीन wherever you get the opportunity, just try to communicate in English. गलत होगा, गड़बड़ होगा, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन eventually you will excel. Eventually आप उसको you will learn, you will excel. ठीक है? There has to be a phase where everyone begins, right? Remember this. So don't fear any sort of peer pressure या फिर stage pressure. Don't fear that, right? Writing एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर है. she was one of the best selling author 2 years back, Preeti Shenoy. So I interacted with that woman and she told me कि अच्छा उनके साथ क्या है, उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन वो कभी अपनी रिवील नहीं करती हैं, कभी नहीं अपनी रिवील करती हैं फॉर्मल एजुकेशन. एंड मेनी पीपल डाउट कि वो क्या ग्रेजुएट है भी कि नहीं है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, शी वॉज द बेस्ट सेलिंग ऑथर 2 years back, Preeti Shenoy, right? So I asked her, how did you improve your English, how did you improve your communication skills, and how did you improve your writing part, right? Then she told me कि improving the writing part involves writing, right?
तो आप 10 सेंटेंस लिखिए, 20 सेंटेंस लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए, बट प्लीज राइट समथिंग एवरी डे, राइट? कुछ ना कुछ आप लिखिए. इफ यू आर स्ट्राइविंग हार्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, प्लीज स्पीक, राइट? कम्युनिकेशन करिए. तो आई मीन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब प्रोस्पेक्ट्स, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज. ओके, हाँ, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज थी. अगर आप बाहर अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, फॉर इंस्टेंस अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है एंड यू आर trying to get into some Western university, for instance, say some university of US, UK, या Canada, या Australia, New Zealand, wherever you want to pursue your post graduation or doctorate, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है. एक होता है GRE का एग्जाम, एक होता है IELTS का एग्जाम. उसमें आपको उस एग्जाम को देने के लिए इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी. उस एग्जाम का स्कोर डिसाइड करता है कि आपको वहां पे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा या आप किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं वहां पे. और अगर आप जॉब उससे जा रहे हैं तो भी यू नीड टू क्वालिफाई दिस टेस्ट, GRE एंड IELTS. GRE एंड IELTS के बारे में अगर हम बात करें, बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. GRE एंड IELTS जो होता है वो एक टेस्ट होता है जो आई थिंक लास्ट ईयर तक तो था, वो 3 महीने में होता था. हर 3 महीने में ये टेस्ट होता था एंड यू नीड टू अप्लाई. एंड आपको उसके टेस्ट पेपर्स जो होंगे वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के 4 सेक्शंस होते हैं एंड दे टेस्ट अकॉर्डिंगली, राइट? आप उसको उसमें आपकी वो रीडिंग एबिलिटी को एक्सेस करते हैं, राइटिंग एबिलिटी को एक्सेस करते हैं, लिसनिंग एबिलिटी को एक्सेस करते हैं, आपके स्पॉन्टेनियस एटीट्यूड को एक्सेस करते हैं. सो इन सारे फेजेस को पास करने के बाद आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं. बट इसके लिए मैंडेटरी क्या है? इंग्लिश इज मैंडेटरी. इट्स अ प्री रिक्वेस्ट थिंग, राइट? ओके, नाउ सो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हो गए आपके, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश हो गई. एंड ओके, सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट so all this we have done. Let's discuss something about, okay, I will narrate my own experiences. मैं आपको थोड़ा बताऊंगी as a Dalit female scholar what I faced wherever I went to study, and how I defy all those caste barriers, gender barriers, and I actually made some space, some agency. I created some agency for me, and how I survived among those academic agraharas, right? So I will tell you something about it. मैं आपको बताऊंगी. When I qualified this exam, JRF, right? तो JRF में जब मैंने क्वालिफाई किया तो मेरी जो बहुत अच्छी रैंक आई थी, एंड जनरल कैटेगरी में आई स्कोर्ड अ गुड रैंक ऑल ओवर इंडिया में. सो somehow I also gave the entrance, right? Then I noticed कि entrance test जो हुआ था PhD का, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि भाई जितने भी उनके हेड मैम के फेवरेट स्कॉलर्स थे उनके सब 1 to 10 आए थे, और उसमें 11वें नंबर पे मेरा नाम था एंट्रेंस टेस्ट में, और मेरे को SC की सीट अलॉट की गई, राइट? I was amazed to find भाई the person who has scored 12th rank all over India में उसको अपनी यूनिवर्सिटी में SC की सीट मिल रही है. चलो ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया. उसमें एडमिशन लेने के बाद मैंने जब देखा, वहां पे मैं गई, जब टॉपिक सिलेक्शन की बात आई PhD में, टॉपिक सिलेक्शन की जब PhD में बात आई तो मेरे को मेरे सुपरवाइजर ने ये कहा तुम कोई दलित इशू से रिलेटेड पे काम कर लो. तो मेरा पहला क्वेश्चन उनसे था, मैम व्हाई ऑन दलित इशू? मैं इससे भी ज्यादा बढ़ के कुछ करना चाहती हूँ. तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा बढ़ के क्या करोगी, तुम दलित इशू, तुम एक दलित हो तो दलित पे काम करो. तो मैंने कहा पहले
so something struck inside my mind कि why such typecasting, ये क्यों हमको टाइपकास्ट कर रहे हैं कि हम दलित हैं तो हम दलित इशू पे ही करेंगे भाई, क्यों हम किसी और इशू पे भी काम कर सकते हैं. Then I opted for my own area of interest, post colonial studies, जिसको मैंने कहा कि, और उस पर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया. ओके, सो जब मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, meanwhile I got a job. सो जब मेरी जॉब लग गई, सो थोड़ा सा जॉब में ऐसा हुआ कि मेरे को थोड़ा, मैं यूनिवर्सिटी में टाइम उधर भी देना होता था, इधर भी देना होता, तो आई फाउंड कि मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है. एंड आई वर्कड ऑन माई ओन. किसी तरह आई पास्ड दैट फेज एंड देन दिस हैपेंड. मेरा जो पीएचडी का वाइवा था वो डिले होता जा रहा था. मेरा काम भी हो गया था, सब कुछ. बट देन अगेन मेरा वाइवा हुआ, सब कुछ हुआ, बीएचयू से एक्सटर्नल आए, मेरा वाइवा हुआ, अच्छा हो गया, ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट. आई डिफाइड दैट. ओके, उसके बाद ये हुआ कि जब ये उसमें क्या कहते हैं, और उसमें आए एकेडमिक फॉर्म्स में आए, और जो I filled various forms and I looked into this ki whatever what sort of opportunities are available as an academics में मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ. So I found the opportunities are limited and जहाँ भी position निकाल रहे हैं, ad hoc की positions निकाल रहे हैं, and जो भी कर रहे हैं वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, मतलब जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी इस तरह से हैम्पर होती है. बट देन अगेन यू हैव टू सर्वाइव. आपको सारे चीजें पता होनी चाहिए, सर्वाइवल के जितने टूल्स हैं, एंड आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए भी थोड़ा सा पैसा तो चाहिए ही होता है. तो यू कैन इनिशियल फेज में यू कैन वर्क, इनिशियल फेज में आप जा सकते हो, यू कैन वर्क, बट लेटर ऑन ये एड हॉक के चक्कर से निकलने के लिए आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे कि आपको वो विशियस सर्किल यू नीड टू ब्रेक. आपको वो विशियस सर्किल तोड़ना होगा एडहॉक का जो होता है, और अपनी परमानेंट पोजीशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना होगा. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं. एक तो दलित होने के नाते, एक तो फीमेल होने के नाते आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं. बट देन अगेन इफ यू आर डिटर्मिनेंट इनफ, इफ यू आर adherent enough, so you can defy all these barriers, you can defy these caste, gender and these socio-linguistic barriers at any point in time, and you can flourish as a well evolving, complete human being, right? So this was my experience regarding this. एक चीज के बारे में मैं आपसे और बात करना चाहूंगी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मेन स्ट्रीम एंड पेरिफेरल डिस्कोर्सेस के बारे में मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूंगी. देखिए, दो तरह के आप इस चीज को बिल्कुल मानिए, ये रियलिटी है, मैंने देखा है. मेन स्ट्रीम डिस्कोर्सेस हमारे इंडिया में चलते हैं और कुछ पेरिफेरल डिस्कोर्सेस चलते हैं. और हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम मेन स्ट्रीम डिस्कोर्सेस को अपने से रिलेट करने लगते हैं पेरिफेरल डिस्कोर्सेस, जो कि एक्चुअली में जिसमें हम रहते हैं उस चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं. सो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्सेस की अगर हम बात करें, सो बाइनरी इसी को लेकर क्रिएट की गई है. मैं आपको बहुत ही जनरल सा एक एग्जांपल दूंगी. अगर आप झांसी की रानी और फूलन देवी की अगर हम बात करें, तो अभी आप झांसी की रानी और फूलन देवी में हम कंपेयर करें, झांसी की रानी एक ऐसा कैरेक्टर थी जो कि क्वीन थी. शी वॉज अ माइटी क्वीन, शी फॉट ऑफ ब्रिटिशर्स. हमको ये सब पढ़ाया जाता है, ओके, दैट वाज फाइन, बट शी फॉट ऑफ ब्रिटिशर्स टू सेव हर थ्रोन. उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए शी फॉट ऑफ ब्रिटिशर्स. दैट इज समथिंग स्प्लेंडेड. ओके, देन व्हाई दे टेंड टू डेमोनाइज एंड डिमोरलाइज दिस वुमन फूलन देवी. इन्होंने क्या किया था? दोनों में डिफरेंस ये था, उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी. तो शी फॉट ऑफ these casteist hounds to save her own honor. So this is the difference. So we tend to praise this queen and we tend to, neglect this woman who is a Bahujan woman. So ऐसे examples हैं, और आपको इस चीज को समझना है कि how to chalk out the difference between mainstream discourse and peripheral discourse. mainstream discourse की चीजें हमको पढ़ाई जाती हैं, हमको बताई जाती हैं, हम उसी चीज को अपना
समझ लेते हैं, बट पेरिफेरल डिस्कोर्स को हम भूल जाते हैं। पेरिफेरल सच्चाई तो ये है, वी ऑल आर रिवॉल्विंग इन द पेरिफेरल डिस्कोर्स एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू स्ट्राइव हार्ड टू क्रिएट द स्पेस फॉर आवरसेल्व्स इन द मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स, राइट। और मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में जिसको थोड़ी एजेंसी मिलती है या थोड़ा स्पेस मिलता है, वो कोशिश कर रहा है, आज हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में अपनी जगह बनाने के लिए। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप एजुकेशनल फील्ड को ले लीजिए, आप डेटाज उठा के देख लीजिए, पीएचडीज तो करते हैं बच्चे, लेकिन एकेडमिक पोजीशन पे कितने परसेंट एससी, एसटीज एंड ओबीसीज आर एम्प्लॉयड? जस्ट लुक, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस रिपोर्ट्स। कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है जिनको कि एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने परसेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉयड है? यू विल बी अमेज्ड टू नो नॉट इवन अ सिंगल ओबीसी फैकल्टी इज एम्प्लॉयड इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर्स की हम बात करें, कितने परसेंट वाइस चांसलर्स जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं? कितने परसेंट? आईआईटीज एंड आईआईएम्स जो कि सेंटर ऑफ एमिनेंस माने जाते हैं, एक्सीलेंस माने जाते हैं, इसमें कितने परसेंट लोग हमारे हैं और हमारे कितने परसेंट लोग बैठे हैं? सो आप उस चीज को पढ़िए, जस्ट डोंट, गफलत में मत रहिए, उस चीज को ग्राउंड रियलिटी पे जाके पढ़िए, रिपोर्ट्स देखिए, then you will be able to chalk out the difference between this mainstream discourse and you will and peripheral discourse, and then आप जो फिर आपको लगे ठीक, आप ऑटोमेटिकली आप उस चीज को लोकेट कर लेंगे कि कैसे चीजें चल रही हैं और कैसे जो एक मेजॉरिटेरियन जो सेक्शन है उसको चीजों से डिप्राइव रखा जा रहा है। इट्स अ वेल प्लान नेक्सस, कैसे डिप्राइव रखा जा रहा है? जो वैकेंसीज होती हैं, नॉट फाउंड एलिजिबल कैंडिडेट निकाल देते हैं, एनएफ ईसी निकाल देते हैं, नॉट फाउंड एलिजिबल कैंडिडेट। अगर एससी की कोई वैकेंसी आती है, बैकलॉग वैकेंसी में उसको भरने के लिए कितना टाइम ये लोग लेते हैं। अगर एक बार वैकेंसी निकालते हैं तो उस पर केसेस हो जाते हैं। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एजुकेशनल फील्ड इज कंसर्न, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज आपको अपने को आई मीन यू हैव टू सर्वाइव अमंग दीज पीपल ओनली, राइट। सो आई विल से जस्ट आई मीन होल्ड द लेवल ऑफ इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए एंड जो सेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप लोकेट करते रहिए। एंटरप्रेन्योर स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश आपको हर जगह से पार नहीं करा सकती है। इंग्लिश एक प्राइमरी स्टेज में यू कैन एंटर विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, बट देन यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन, ओके। सो प्राइमरी स्टेज में इंग्लिश कैन गिव यू एंट्री। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बात बात पे ये लोग मेरिट 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 मेरिट, दे कीप ऑन रिटरेटिंग मेरिट 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 मेरिट। सो व्हाट इज दिस मेरिट? मेरिट क्या है? मेरिट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द कोचिंग सेंटर्स। जिनके पास पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं करेंगे, कहाँ से? तो उनको हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी है। मेरिट 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 जो ये चिल्लाते हैं, तो उस चीज को, ये इंग्लिश को आजकल इन्होंने एक मेरिट का पैरामीटर बना लिया है। सो उस चीज को आपको जवाब देने के लिए यू नीड टू लर्न इंग्लिश, राइट। सो इंग्लिश, लेकिन प्राइमरी स्टेज तो यू कैन क्लियर, ओके। व्हाट आफ्टर दैट? आप लोगों ने अभी न्यूज पढ़ी होगी, सिस्को के जो हेड थे, उन्होंने उसकी न्यूज आई थी, एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की न्यूज suddenly flashed and we all get flabbergasted. Okay, in institutions like Cisco this is happening, I mean in US this is happening, we all get flabbergasted कि भाई एक बंदा पढ़ के अच्छी जॉब लेके मेरिटोरियस बच्चा हमारा यूएस जा रहा है, then again there also he is facing discrimination. So how will you justify then? Okay, सो देन ऑल्सो इंग्लिश जो है वो आपको हर तरफ से, आपको बिगिनिंग में मदद करेगी, आपको सर्वाइवल में डेफिनेटली मदद करेगी, बट इन ऑर्डर टू फॉट ऑफ you need to have other qualities as well, right? You need to have outspoken attitude, you should know about your rights, you should know about whatever the subject you are dealing in, and also बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए, सही चीज पढ़िए
और क्या कहते हैं, काम की चीज पढ़िए। हर चीज आपको नहीं पढ़नी है, आपको सरवाइव करने के लिए काम की चीज पढ़नी है, राइट। और आपको अपने राइट्स को पता होने चाहिए। जैसे कि अभी यूएस ने इस घटना के बाद आफ्टर द सिस्को इंसिडेंट लॉ बनने जा रहा है रिगार्डिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रोफेशनल रेल्म। सो वो एक लॉ बनाने जा रहे हैं। तो आपको अगर अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, देन यू वोंट बी नोइंग वेयर टू गो, वेयर टू कंप्लेन। सो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जस्ट टू गेन बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज इंग्लिश आपको वेस्ट की तरफ ले जाएगी। इट विल ओपन मेनी एवेन्यूज एंड नॉट ओनली इन द वेस्ट। इंग्लिश also acts as a ligature, the binding string between, the 4 regions, the northern, southern, eastern and western. So it acts as a binding string. अगर आप साउथ में जाएंगे then you will get to find साउथ का जो माहौल है वो नॉर्थ के कंपैरिजन में काफी डिसेंट लोग हैं। वहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, दे वैल्यू एजुकेशन, दे वैल्यू इंग्लिश एंड दे एम्फसाइज ऑन इंग्लिश एजुकेशन। अगर आप नॉर्थ इंडियंस की बात करें तो दे आर वेरी वेरी रिलक्टेंट टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज। साउथ की बात करें तो दलित क्रिश्चियंस जो है वहाँ, दलित क्रिश्चियन, आई हैव मेट मेनी विमेन फ्रॉम चेन्नई। सो वहाँ पे जो है वो दलित क्रिश्चियंस जो है वो पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, टीचर्स हैं, दे आर टीचिंग एंड दे आर डूइंग वेल। मोस्ट ऑफ देम आर इनटू दिस इंग्लिश टीचिंग। So they value English and they value education. So आपको क्या करना है? Don't remain like a frog in the well. You have to see the world. You have to trespass, all these barriers. दुनिया देखिए, साउथ में जाइए, ईस्ट में लोगों से इंटरेक्ट करिए, वेस्ट में जाइए, हर चीज देखिए। For that you need to strive hard and incessant. You need to have that incessant zeal. आपको you need to maintain, you need to keep that zeal intact. That incessant zeal should remain intact. उसके थ्रू आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। So I'm really thankful to the organizers for giving me this splendid opportunity. And I wish आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ समझ आया हो इस लेक्चर से, then really be